Hi and welcome to RN by Inside Learning Hub. This is the 21 video of the Java series. In this video, we will continue in the file handling section. In today's video, we will understand the how to write data into a file and how to read a data from the file practically. So now let's begin. Okay, okay, we have I will create a package for the file handling. Okay, file handling. Okay, now fine. Now I'm going to create another package which is a text file. Okay, text file. So we will cover different kind of file like Excel, like PDF, like docs. So we will cover all these things in coming video. Okay, now I'm going to create a file. One second. Text file read write and read data, or we can say most we can write and read data text file text file. Okay, now method. Okay, I'm going to create a file object, file class object, file object new file. This will require a path of the file where. Okay, now I'm going to create a file. Now giving the file path. One second. Create another resource folder. src slash main slash resources again already. Okay, now I'm going to create another folder, text files. Okay, now I'm going to give a path. For get a path, right click on that file which we are need to fetch the path. Now click up properties and copy the path. Okay, now I will show the both path. One second. Second. This is an absolute path. Okay, and and okay, now I'm going to text file dot text. Okay, why we are getting an error? Yes, because we not importing a package. So mouse hover on the class and you will get an option and click on the file java.io.file. Okay, this is the file location where the file class is located. Okay, so this is a beauty of the import keyword. Okay, import keyword
give identification of the location of that file which we are using in our code. Okay. Now I will check if file is exist or not. This is very useful method which we have. If file object dot is exist 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 will return a boolean. Okay, this will return a boolean value. If the file is exist, then true. If not, then false. So test whether the file or directory donated by the abstract file name exist. So here you can read true if and only if the file or directory donated by the abstract. ठीक है, अब क्या है कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि वो फाइल है कि नहीं है. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें नई फाइल बनानी होती है और सपोज उस नाम की ऑलरेडी फाइल है आपके प्रोजेक्ट में. आप मिड में ज्वाइन हुए किसी कंपनी में, ऑलरेडी एक कंपनी है, आप उसमें मिड में ज्वाइन हुए जिसका प्रोजेक्ट 2-3 सालों से ऑलरेडी चल रहा है. ठीक है, और क्या है कि आपको नहीं पता इतने प्रोजेक्ट में उस नाम की, जिस नाम की आप फाइल बनाने वाले हो, आपको नहीं पता. या तो आप मैनुअली ढूंढोगे, है ना, मैनुअली ढूंढने में टाइम भी लग सकता है और आपसे माइट भी स्किप हो जाए, वो फाइल आपसे स्किप हो जाए कि है कि नहीं है. तो एक मेथड है फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट. वो क्या कर रहा है, ये वो सर्च करता है कि उस नाम की फाइल, इस नाम की फाइल है कि नहीं है. ठीक है, विद दिस एक्सटेंशन इस नाम की फाइल है कि नहीं है इस लोकेशन पे. अगर है तो वो आप अगर राइट कर रहे हो डेटा तो राइट कर देगा, रीड कर रहे हो तो रीड कर देगा. ठीक है, रीड कर लेगा डेटा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी. ट्रू. ओके, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स. ओके, फॉल्स. Now I'm going to run this. False. As you can see, the file is not exist. So as you can see, text file is a folder and text file and text is a file name. Okay, we can. Okay, we can read, write text file and now run again. नो कन्फ्यूज़न. तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, तो अब क्या है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें अब इस फाइल पे राइट करना है. अब फाइल तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, तो मैं इसको क्या करूँगा, नॉट लगाऊंगा. इफ़ नॉट एग्जिस्ट. मैंने उल्टा लगाया और यहाँ पे क्या किया मैंने. ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट न्यू फाइल. अब ये क्रिएट अ न्यू फाइल विल हेल्प टू क्रिएट अ न्यू फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर किया है कि अगर फाइल नहीं है, मैंने नॉट पहले लगा दिया. ये कह रहा है कि एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट मतलब ये निकाल के ला रहा है कि एग्जिस्ट है या नहीं है. अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स. तो मैंने पहले ही नोट कर दिया कि है ही नहीं, मैंने पहले ही मान लिया कि नहीं है. ठीक है, मैंने पहले ही नॉट कंडीशन यहाँ पे लगा दी. अगर नहीं है तो मेरी फाइल क्रिएट हो जाए. ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी. अब ये एरर क्यों दे रहा है, एज बिकॉज दिस विल थ्रो एन एरर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू, फॉर नाउ आई एम यूज एक्सेप्शन. दिस विल गिव अ एक्चुअल एरर. ओके, नाउ अब मेरी फाइल बन गई है यहाँ पे. अब मैं क्या करूँगा, use a file writer. So we have file writer class, fw2 file writer object new. ओके, फाइल राइटर ऑब्जेक्ट को फाइल का पाथ चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल ऑब्जेक्ट, इस फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए. तो क्या, जो फाइल क्लास ने इस पाथ को स्टोर कर दिया इस ऑब्जेक्ट में. ओके, फिर इस पाथ को इसको दे दिया.
अब ये क्या करेगा, इसको इस फाइल में जो डेटा आप राइट कर रहे हो वो राइट कर देगा। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसका लोकेशन नहीं बताया कि हम ये फाइल कहाँ पर है। ठीक है, इस कोड को नहीं पता ये फाइल कहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, import java.io.file sorry file writer. Okay, now error is gone, sorry, error is gone. Okay, now file writer object. Now we have so many method as already discussed in earlier video. Okay, if you have not watched, then I am requesting you please watch the earlier video to more understanding. Okay, अगर आप बीच से देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि क्लास क्या होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या बिहेवियर होता है किसी। अब क्या है कि जब मैं इंटरव्यू ले रहा था मैंने एक बंदे से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। ठीक है, दोनों दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपके से भी पूछ रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, तो आप अपना आंसर उस पर दे सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपको मैं आपको 2-3 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा पहले मैं सबके आंसर देखूंगा। ठीक है, फिर मैं आंसर राइट, जिसका राइट होगा उसका राइट कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगा कमेंट में। ठीक है, तो अपना चेक कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। ओके, नाउ we want to write, so write. Okay, so we have so many write as already discussed, character as a array form, integer, string. So now for now I am using a string, so I am giving hi everyone, this is our dummy data for understanding. Okay, fine. Okay, now run this code. Okay, run this code, no error. ओके, एंड अगर अभी देखो अभी ये फाइल यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको करना क्या है, राइट क्लिक करनी है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, गलती से डिलीट मत दबा देना अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, कई बार मैं कर चुका हूँ जब मैं लर्निंग कर रहा था। ठीक है, फिर मुझे दोबारा से लिखना पड़ता है। ओके, तो रिफ्रेश करना है। अब ये फाइल यहाँ पर देखो बन गई है, रीड फाइल ये वाली ना। अभी अब देखो पहले फाइल खोलो। ठीक है, अभी इसमें कोई डेटा नहीं है जबकि हमने डेटा लिखा था। अब क्यों नहीं है, अब आपको मैं समझाऊंगा कि अब डेटा हमारा कैसे आएगा। हमने पहले ही डिस्कस किया था फाइल राइटर ऑब्जेक्ट डॉट प्लस। अब प्लस क्या करेगा, मैंने समझाया था, मुझे याद है, प्लस विल हेल्प टू save the data in a file. Okay, and now this object is 1 second guys, 1 second. Okay, so this is getting a warning. Why we are getting a warning? This now मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं किया, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब क्लोज, अब ये वार्निंग हमारी चलेगी। तो मैंने क्या बोला था पहले की वीडियो में कि हमें किसी फाइल को, जैसे हम कोई डायरी लिखते हैं, ठीक है, डायरी में जो हमें लिखना है लिख दिया, फिर उसे हम बंद करके रख देते हैं ताकि कोई और आके ना पढ़ सके या जो भी है। ठीक है, ऐसे ही डेटा लीकेज ना हो, इसलिए क्लोज का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लोज के बारे में पढ़ सकते हैं और जाके गूगल में भी देख सकते हैं। मैं और डिटेल में आगे आने वाले वीडियोज में और अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल शॉर्ट में यही है कि क्लोज हम इसीलिए डेटा लीकेज ना हो। ठीक है, और क्लोज इंपॉर्टेंट, आप नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि क्लोज का यूज करो। अब हम दोबारा ये कोड चलाते हैं। ठीक है, दोबारा चलाते हैं। ओके, नो एरर। ओके, परफेक्टली फाइन। रिफ्रेश करो प्रोजेक्ट को। अब दोबारा फाइल को खोलो।
देखो ये हमारा डेटा आ गया जो हमने लिखा था, हाई एवरीवन दिस इज आवर डमी डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग। प्लस क्या कर रहा है, प्लस आपका डेटा राइट रीड तो हो गया लेकिन वो सेव नहीं हुआ। ठीक है, क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो हम कोई काम कर रहे हैं और बीच में लाइट चली गई तो डेटा लॉस्ट हो गया जो हमने सेव ही नहीं किया। तो टीचर ने सिखाया था ना, कंट्रोल एस करो। ऐसे ही प्लस का काम है कि आपने जो डेटा रीड किया है, राइट किया है सॉरी, वो सेव तो करना जरूरी है ना। ठीक है, ओके नाउ फाइन। अब हमें बार बार उस फाइल में डेटा क्या गया है क्या नहीं गया है वो चेक करने के लिए बार बार फाइल तो नहीं खोलेंगे। तो उसके लिए हम अब इस डेटा को हम रीड करेंगे। ठीक है, कैसे रीड करेंगे? नाउ विद द हेल्प ऑफ फाइल रीडर। नाउ फाइल रीडर क्लास, ओके, फाइल रीडर ऑब्जेक्ट, न्यू फाइल रीडर। और इस फाइल रीडर को भी फाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि फाइल कहाँ पे है। ओके ना फाइन, मैं इसका लोकेशन बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लोकेशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब आते हैं कि मैं एक अभी एक और चीज़ है कि सीसो फाइल रीडर ऑब्जेक्ट डॉट रीड। ओके, एंड मैं क्या करूँगा, फाइल रीडर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दी मैंने, फाइल पढ़ के, किताब पढ़ के बंद कर दी। अब देखते हैं क्या डेटा हमारा आ रहा है, देखते हैं कंसोल में। अब आप देख रहे हो कि इंटीजर में दे रहा है। क्यों? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फाइल रीडर क्या करता है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करता है। अब फाइल हमारा जहाँ कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सेव हुआ है वो भी स्काई वैल्यू पे। ठीक है, स्काई वैल्यू उसमें हुई है। हम्म, आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप इजीली डालोगे स्काई वैल्यू, ASSCII। माई नेटवर्क स्लो। ओके, जब तक ये लोड हो रहा है जब तक हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है कि मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इंटीजर, क्योंकि एक कैरेक्टर, आप याद देखोगे रीड क्या हमें दे रहा है रिटर्न में, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर दे रहा है और कैरेक्टर इंटीजर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रीड डेटा। ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और क्या करूंगा, मैं फाइल लूप का यूज़ करूंगा। ठीक है, रीड डेटा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कट करके, नाउ आई एम यूजिंग, मैंने क्या किया, फाइल रीड की और इसमें डेटा सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि नॉट इक्वल टू -1। क्या हुआ, क्या हुआ इस लॉजिक से कि कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ये लूप जब तक चला, लूप हमारा वाइल लूप जब तक चल रहा है जब तक कि उस फाइल में डेटा है -1, क्योंकि हमारा 0 से एरे स्टार्ट होता है, हम पहले ही डिस्कस कर सके हैं। ठीक है, 0 से एरे स्टार्ट होता है, तो -1 जैसे सपोज हमारा ये कैरेक्टर है 20, सपोज ये सारे कैरेक्टर हैं 20, तो अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 90 है ना, तो 90 आएगा, 19 सॉरी। ठीक है, 19 आएगा तो -1 तभी। अब क्या हुआ, एक एक कैरेक्टर इसमें सेव होता चला गया, नॉट इक्वल टू, जब तक कि वो इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है गाइज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आता दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस। मेरा डेटा कहाँ पे है, रीड और डेटा। अब देखो, अब दोबारा रन करो इसको, दोबारा रन करते हैं, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। कहाँ एरर है, कहाँ एरर है, ओके 1 सेकेंड, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। अब दोबारा अब देखो आप,
एक मिनट आप ऐसे 1 सेकेंड। अब आप देखो, क्योंकि उसने एक ही कैरेक्टर को सुमित 72 पे होगा। अगर ये लोड हो गया इसका वैल्यू, आप देखो यहाँ पे लोड हो गई है स्काई वैल्यू, स्काई टेबल। ठीक है, आप इसको गूगल पे देखना, आज मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, ओपन हो जाने दो। ठीक है, अब क्या है, ये सुमित जो भी 72 पे जो कैरेक्टर होगा वो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एज ए इंटीजर कन्वर्ट होके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा था, टाइप कास्टिंग। ठीक है, ठीक है, क्या किया मैंने, इसको टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, इसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया इंटीजर को कैरेक्टर में। ठीक है, अब दोबारा से रन करो इस कोड को। अब देखो, हाय एवरीवन, दिस इज आवर डमी डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग। डेटा हमारा आ गया, हमें फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, फाइल को रिफ्रेश, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मैंने रीडर और राइटर दोनों को क्लोज किया है। रीडर को, राइटर को भी, रीडर को भी क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, दोबारा देख लेना गाइस, और पुराने वीडियो जरूर देख लेना अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, ओके गाइस, I hope you will like the video. To show your response, please hit the like button. And if you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon to receive the notification for updated videos. I would be glad to receive your feedback, suggestions and queries in the comment section. Comment section आपका खुला हुआ है, जो queries हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इज, मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्लीज़। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।